Okay, we will start. Now, in this semester, you will learn the software engineering. I think it is the most important subject in the part of your curriculum because whenever you are go to outside in means company, so you have to follow some step to for the development of the website as well as the develop any mobile application, right? So first of all, we will start with discussion. So I think I request to all of you, just unmute your mic and give me an answer if I will ask you any question to you, right? So this subject is based on the discussion, so you will easily learn about the different phase of the software engineering. It's a totally theoretical subject, and you have to do some designing like ER diagram, DFT diagram. You have already learned in the database management system. So I just share my screen. So wait. Okay. Now it is visible. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. चली गई सर. या आपके क्लासमेट है ना, पहले से आदत है लेट आने की, इसलिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताऊंगा और थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो बेसिक स्टेप है उसका, और जो आपका सिलेबस है तो उस सिलेबस में जो चैप्टर वाइज कवर करेंगे हम, तो उसका थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा. ओके, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि वाई रिक्वायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि ये सब्जेक्ट क्यों है, राइट? एनी हैव एनी आइडिया? D2D student? No. Okay. Now let me know, if I have to build this type of the house, so what is the further process or the any process to how to develop this kind of the house? Just unmute So your first, we have to mic. design our model for. Yes. Sir, first of all, we have to make a plan on a paper. Then we can. Yes. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. Actually, first of all, we need to make our plan on paper or on software like Revit or BIM softwares, and then we need to identify what material we will use, how much quantity it will take to build the house, and then we plan according for Okay. building this kind of house. Okay. Any other specification? Anybody? Uh, and Yes. that's it. Then we will make a contact with some architect, and we'll give them our contact. Okay, and, Karan, they will please give a chance assign to the another work student. different fields of agencies, and then they will carry on the building process. Okay. Any other student?
Want to say something? Yeah. अ, हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है यानी सॉफ्टवेयर, वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा और कैसे Okay, sir. Done. हम्म सब एनालिसिस होता है वो हमें करना पड़ता है। जैसे कि हम्म सॉफ्टवेयर का पूरा एनालिसिस होना चाहिए हमारे पास कि क्लाइंट को नहीं, क्या। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर दिस बिल्डिंग। ओके, ओके सर। हम्म सर इसके लिए हमें पूरा एक सॉफ्टवेयर में पूरा हाउस बनाना चाहिए पड़ेगा। हम्म उसमें आप क्लाइंट को कैसा आर्किटेक्चर चाहिए, कौन सी कहाँ जगह पे कुछ चाहिए, वो सब पूरा डिजाइनिंग बना के उसको क्लाइंट को दिखाना होता है। फिर उसके बाद क्लाइंट डन करे फिर हम आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। Okay, that's good. I think whenever we want to make this kind of the house, first of all we need some measurement, right? कि सपोज मुझे इस एरिया में बनाना है तो मुझे उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसकी जो लैंड है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट you will design means you will finalize the draft of this house, like जो आर्किटेक्ट करता है तो आर्किटेक्ट क्या करता है कि पहले जो भी घर बनाना है तो वो उस लैंड पे जाते हैं, मीन्स फील्ड वर्क करते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि उसका वेदर कैसा है और उसका जो आजू बाजू सराउंडिंग एरिया क्या है, तो उसके हिसाब से वो लोग ये पूरा डेमो तैयार करते हैं। देन आफ्टर दे विल स्टार्ट दी कंस्ट्रक्ट दी दिस काइंड ऑफ दी हाउस, राइट? और एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि सपोज मुझे ये टैंक बनाना है तो क्या प्रोसीजर रहेगी? सबसे पहले सर हमें वो जानना होगा कि इस टैंक के अंदर हम क्या भरेंगे, मतलब क्या हम्म डालेंगे अंदर, किस हम्म टाइप का मटेरियल अंदर हम इनपुट करने वाले हैं उसके अंदर। ओके अ, देन और आफ्टर कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, मतलब टैंक का साइज क्या होगा, ओके छोटा या बड़ा टैंक क्या होगा, मतलब कितना अंदर हम वो कहते हैं ना मटेरियल अंदर इनपुट करने वाले, उसके हिसाब से वो टैंक को बनाना पड़ेगा। या राइट, एनी अदर? उसमें कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सा स्टील यूज होगा, एक्सेट्रा। एनीथिंग? और कुछ? बस? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं सो यू हैव टू नो दैट कि हम कभी कहीं पे भी हम यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट या एनीथिंग तो हम कुछ इंसर्ट करते हैं और हम कुछ रिट्रीव करते हैं फ्रॉम डेटाबेस, राइट? और इनटू डेटाबेस। सो बेसिकली जब भी हम ऐसी कोई टैंक बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से हमें इनपुट देना है, मीन्स जो भी हम मटेरियल उसमें भरने वाले हैं तो कहाँ से जाएगा और कैसे बाहर निकलेगा, राइट? और एज वेल एज उसका डायमीटर क्या होगा, वो कौन सी कंडीशन में रहने वाली है और कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना पड़ता है, राइट? देन आफ्टर वी विल टेस्ट ऑन द पर्टिकुलर दिस टैंक, देन वी फाइनलाइज द कि नहीं ये टैंक सही है, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी फुलफिल हो रही है, राइट? तो अब मैं आपको पूछता हूं आपके कंप्यूटर में कि व्हाट इज द स्टेप फॉर डेवलपिंग वेबसाइट सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन? इज देयर एनी आइडिया? हेलो? सर पूरी वेबसाइट का एनालिसिस यानी क्लाइंट को वेबसाइट में क्या रखना है वो सारा कंटेंट लेना पड़ेगा। फिर कैसे बिल्ड होगा, मीन्स पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा पहले। उसके बाद जाके वेबसाइट बनती है और अलग अलग लेआउट के रिस्पॉन्सिव बनता है। Okay, any other? I think यस सर। in your class Hello, I sir. have. Can I speak? Wait. I think in your class I have a Hello. four girls. Am I I think audible, sir? they are available or not? Yes, sir. My idea is of building the website of any kind is like first of all we have to fir- first of all we have to do we have to do research and development. Mm-hmm. Then Harsh Godkar,
Just give me answer. Yes, sir. First, for any software, we need to know what the software is about and who will be our clients, what Hmm. server is working on. Like for shopping websites, the server needs to be bigger Hmm. if we will be handling more clients. Hmm. And for a app for a shop would be smaller application, Hmm. and there's a lot of things like that, that who will be our clients, who will be our how the website should look, the css, the designing of the website, Hmm. and all these things are needed. Okay. Uh, Raj, sorry, Raj. Is there any other step? पर बाद में सर डिजाइनिंग क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? Sir, sir, hello. हाँ. So there क्या? is some issue with some. Sorry. हेलो. सर उसका नेट स्लो लगता है. आई थिंक. हाँ. अंजलि, you have any idea about the further step after the analysis or and designing? सॉरी सर, आई मिस्ड योर लेक्चर क्योंकि मेरा कॉल आ गया था फोन पे थोड़ा. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. आई विल आस्क यू एनीवन ड्यूरिंग द माय लेक्चर because this Okay, subject sir, is sorry, sir, based, call आ गया फिर. no issue, because this subject is based on totally discussion, right? ओके सर. So I think you all know that you think that there are two-step analysis as well as designing how customer react on the our website or the software, and what is their requirement for the how to handle the different database, and how to customize a customer requirement on single web page or any application, right? So basically there are four steps or common phase for the software development. First one is the analysis, second designing, third is coding or implementation, and last one is testing, right? So I think you know that there are four kind of the requirement are available in each and every company. The first one is the system analyst. I think I will map it with the analysis phase. Means जो भी बंदा as a system analysis job करता है, उसको work क्या करना होता है? Analysis means जब भी customer कोई requirement देता है कि I have to develop this kind of the website or any software or mobile application, so particular that person gather the all information related to that particular project, and they analyze the different constraint like उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, या उसमें पेमेंट मेथड है कि नहीं, कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्टैटिक है, डायनेमिक है. सो ये जो सारी चीज है वो एनालिसिस में कवर होती है. तो बेसिकली आपने जो डीबीएमएस में पढ़ा होगा कि आपके 3-4 डायग्राम आते थे. आई थिंक ईआर डायग्राम, क्लास डायग्राम, डीएफडी डायग्राम. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर. हाँ, तो ये पूरा Yes, कवर sir. कहाँ पे? हाँ, तो वो जो डायग्राम है वो कहां पे बनेंगे? तो डिजाइन में. डिजाइन मीन यू हैव टू मेक वन रफ प्रोटोटाइप कि आपका जो भी नेविगेशन है, कि सपोज मैंने एक वेबसाइट ली है तो उसमें होम पेज पे सब अलग अलग मेन्यूज रखे हैं, और साइड में न्यूज बार है या स्क्रोलिंग चल रहा है, फूटर में मैंने कोई अदर एक्स्ट्रा लिंक रखी है, तो उसका पूरा नेविगेशन कैसा रहता है. तो वो सारा जो आप डीएफडी है कि आपका डेटा फ्लो कहां से रिट्रीव होता है और इंसर्ट कहां से होता है, दैट मीन्स डिजाइन डायग्राम. मीन्स आपके अलग अलग टेबल्स है जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनके रिलेशनशिप कौन सी रहती है, तो वो आप यूज करते हो ईआर डायग्राम. देन क्लास डायग्राम कि आपने अलग अलग कोई क्लास बनाया है कि पर्टिकुलर उसमें आपको ये डेटा स्टोर करना है, राइट? तो ये 3 मेन आपके जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो हमें जब भी यूजर इंटरफेस हैंडल करना होता है, तो आई थिंक यू हैव मेड द यूज केस डायग्राम.
So I think it would be helpful to understand how to interact with this system from the user. Then third step है कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन. जो कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन है तो उसमें क्या करता है कि जो भी एनालिसिस फेज में फाइनल होके आपको एक प्रोसेस दिया जाता है कि आपको इस पेज को यहाँ पे कनेक्ट करना है और ये जो डेटा है यहाँ पे शो करना है और कहीं पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है. So whenever you enter the any details on that form, so you just click on the submit button. So data will go to the database on particular table. तो ये जो सारा लॉजिक डेवलप होता है तो वो कौन से पार्ट में आता है? कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन. देन थर्ड लास्ट वन इज अ टेस्टिंग. तो टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसको टेस्ट करना जरूरी होता है. तो ये स्टेप क्यों जरूरी है आपको पता है किसी को? राणा, अनिश? आई थिंक आपको बुरी आदत होगी जब भी आप. हाँ बोलिए. यस सर, वो टेस्टिंग इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादा समय उसके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चले, क्योंकि ज़्यादा समय यूज़ करने से वो गर्म हीट हो जाता है. देन लगता है उसकी बैटरी भी चेक कर सकते हैं कितना समय तक चल सकती है. ओके, वी हैव टू टेस्ट दी अवर वेबसाइट, नॉट दी अवर सिस्टम. देन नो आइडिया. ओके, अंकित? सर कैन आई स्पीक? या सर क्योंकि उसमें डीबग्स हो या फिर ग्लिच हो रहा हो तो तब भी पता चल जाता है कि क्यों उसके टेस्टिंग के द्वारा कि हमके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. ओके, एनी अदर? अंकित? उससे नो आइडिया अभी. ओके, दीप? हाँ सर, क्योंकि उसमें बग्स आ जाते हैं और वो वेबसाइट हम वहाँ पे ग्लिच होने लगती है और वेबसाइट अपने आप चलती रहती है और उसमें हमको हैकिंग जैसा लगता है, इसलिए वो चेक करने के लिए हमको टेस्ट करते रहना पड़ता है. देखो, आप जब भी आपका जो भी आप बना रहे हो कि सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एनालिसिस फेज में होता है कि एक वेबसाइट जब भी आपको डेवलप करता है डेवलपर, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है कि सपोज होम पेज मुझे डिफाइन करना है तो मुझे होम पेज पे ये टाइटल रखना है, मुझे ये इमेज शो करनी है और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो रखना है. बट वहां पे क्या होगा? वहां पे लिखा होगा कि आपको फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या है, ये कलर क्या है. तो ये सारी रिक्वायरमेंट वहां पे लिखी होगी. किसने? जो भी सिस्टम एनालिसिस ने पहले से डिफाइन किया होगा, राइट? तो वो डिफाइन करते हो तो ऐसी कई चीज, ऐसी स्मॉल स्मॉल थिंग रह जाती है कि आपको यहाँ पे जब भी डेवलपर ये सारी चीजें यूज करता है तो शायद वो रेड कलर रखना हो, उसने ब्लू रख दिया हो. तो ये जो सारी एरर है छोटी छोटी, तो वो कहाँ पे फाइनलाइज होती है और आइडेंटिफाई होती है? जो ड्यूरिंग दी टेस्टिंग फेज, राइट? तो ये तो मैंने एक नॉर्मल आपको बताया. और एक ऐसी भी चीज है कि सपोज आप जब भी डेटाबेस यूज कर रहे होते हो कि सपोज मैं आपको बताता हूं कि लॉगिन है, राइट? हम फेसबुक लॉगिन पेज है कि वहां आईडी और पासवर्ड होता है और बाजू में लॉगिन बटन होता है, राइट? तो जब भी आप वहां पे डेटा डालते हो कि सपोज वहां पे अंडरस्कोर नहीं ले रहा है यूजर आईडी में, राइट? तो आपको क्या टेस्ट करना होता है कि जो भी आप यूज कर रहे हो कि यहाँ पे मुझे ये टेस्ट करना है कि यूजर आईडी में अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए, राइट? तो आप जब भी एंटर करोगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे देखा जाएगा कि अंडरस्कोर ले रहा है कि नहीं ले रहा है. शायद पॉसिबल है जो भी वैलिडेशन कर रहा है डेवलपर तो उसको पता भी नहीं है और वहां से गलती से उसे छूट गया है कि मुझे ये करना नहीं है, राइट? हेलो, इट इज क्लियर? सर आपका वॉइस इशू हो रहा है. हेलो, नाउ इट्स क्लियर? हेलो सर आपका वॉइस इशू हो रहा है. यस सर, क्लियर. हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल? यस सर, नाउ क्लियर. yes sir. हाँ. Yes sir. यस सर, इट इज ऑडिबल. ओके, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम यूज करते हैं कोई भी फेसबुक बटन पे तो वहां पे आईडी में हम डालते हैं कि माय नेम इज भूपेंद्र अंडरस्कोर पटेल. तो आई थिंक वो अलाउ नहीं कर रहा है वहां पे, राइट?
तो यू हैव टू टेस्ट दैट कि वहां पे जब भी डेवलपर ने डेवलप किया है यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए, तो वहां पे कोई इंसर्ट करता है डेटा, तो वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है. तो यू हैव टू जस्ट एंटर द डेटा विद द अंडरस्कोर, राइट. देन यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. जो सही कोडिंग किया होगा तो वो टेस्ट केस में से निकल जाएगा, मीन्स जो डेवलपर ने समझा है वो सही है. अगर आप वहां पे एरर डिफाइन करते हो, मीन्स आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको वो वापस भेजना होता है डेवलपर के पास कि नहीं ये जो है आपने अंडरस्कोर रखने का बोला है कि नहीं होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे डाल दिया है कि अंडरस्कोर आ रहा है, तो जस्ट करेक्ट इट. तो ये बेसिक स्टेप है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए यूज करते हैं. सो देयर आर सम एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड द फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो जो भी आप कंपनी में जाते हो या आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, सपोज डीओई है और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, so you should know that what are the different phases whenever we start to do any project development, right? So ये इसलिए यूजफुल है. The second thing is minimize software development time and cost. तो वो कैसे होता है कि सपोज whenever you are going to develop any project or any website, आपने एक प्लानिंग किया है तो आपका क्या बचेगा, टाइम एज वेल एज कॉस्ट. तो मैं एक एग्जांपल देता हूं. आप कहीं टूर फाइनलाइज करते हो, राइट, कि आपको दिल्ली जाना है, तो आप 15 दिन या एक मंथ के पहले क्यों बुक करते हो? या कहीं टूर पे जाते हो तो आप होटल बुकिंग है, रिजर्वेशन है, बिफोर 1 मंथ क्यों करते हो? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो इसलिए. हाँ, एनी अदर? और उस टाइम टिकट भी अवेलेबल होती है, तो अगर हम पहले से बुक करते हैं सर तो इजीली अवेलेबल होता है फैसिलिटीज. अगर लो ट्रैफिक होगा तो प्राइस भी चीप होगा. आप अफेक्टिवली प्लानिंग कर सकते हो, राइट, उसको कि हमें कैसे जाना है. अगर आपको कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई करना है तो आप इसी से वो फाइंड भी कर सकते हो. तो इसी सेम थिंग कि आप जब भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो कि सपोज हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं 4 पेज की, आई थिंक सीएसएस एचटीएमएल के साथ आप बैठोगे, आप बिगिनर हो तो भी 1 वीक के अंदर आप बना दोगे इजी से, राइट, यूट्यूब पे से सीखने के बाद. तो कई बार आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि मैं 1 वीक में कर दूंगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? आई नीड सर 2 वीक्स टाइम, राइट. क्यों 1 वीक ज्यादा क्यों बोले आप? अगर सर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चेक कर पाएंगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना ओके. कि एक बात सुन लीजिए, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सिचुएशन आती है ड्यूरिंग 1 वीक कि आपको पता नहीं है, राइट, कि आपको अचानक कहाँ बाहर जाना हो गया कि या कुछ अलग काम आ गया, फैमिली कोई काम है या कोई कॉलेज में एग्जाम ऐसा कुछ आ गया, तो आप क्या करोगे कि 1 वीक बफर टाइम लोगे आप कि नहीं 1 वीक ज्यादा बोलते हैं पहले, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, सो वी विल डिलीवर इट. बट नहीं हुआ तो हमारे पास तो 1 वीक का टाइम है बफर में, तो हम इजी से उसको नेक्स्ट वीक में खत्म कर सकते हैं और इजी से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, राइट. तो ये था हमारा सेकंड, टाइम एंड कॉस्ट. देन गेट हाई क्वालिटी. तो हाई क्वालिटी कब मिलती है? जब हमारा टेस्टिंग 100% क्लियर हो तब, राइट. देन एरर फ्री प्रोडक्ट. हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? एरर फ्री प्रोडक्ट आएगा ना. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपकी जीटीयू की वेबसाइट है, तो जब भी रिजल्ट आता है तो थोड़ी देर के लिए वो हैंग हो जाती है, टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस ऐसा कुछ लिखा आता है, राइट. क्यों? उसका रीजन क्या है? सर्वर इशू. या सर्वर इश्यू, बिकॉज जब भी उन्होंने बनाया है तो वो टेस्ट नहीं किया है कि वी हैव अराउंड 10,000 स्टूडेंट इन पर्टिकुलर 4th सेमेस्टर, सो व्हेनेवर दे ट्राई टू गेट द रिजल्ट, सो वी कैन नॉट हैंडल द 10,000 रिक्वेस्ट एट आवर सर्वर. सो उन्होंने टेस्ट नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट. तो 2-3 साल चले वो लोग, फिर उन्होंने क्या किया, एक अल्टरनेट लिंक टू कर दी कि वहां से भी आप चेक कर सकते हो. तो वहां पे भी डेटाबेस कनेक्शन दे दिया सेम टेबल का, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो. तो ये जब आप होस्ट करते हो उसके बाद आता है, तो उससे बेटर है कि आप पहले से उसको टेस्ट कीजिए. सो देयर आर मेनी वेज टू टेस्ट दी आवर प्रोजेक्ट और दी वेबसाइट.
I will explain with the practical whenever you rejoin the college, right? So don't worry about that. And second है easy to customize. Easy to customize means क्या कि आपने एक एक पेज में डिफाइन किया है कि मुझे यहाँ पे ये पेज रखना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा, राइट? तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको मिडल में कोई पेज रखना हो, सो यू कैन इजीली इंसर्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट, राइट? कि आपने ऐसे कहीं से भी लिंक दे दिए एक दूसरे पेज में से, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे ये डेटा डालना है, आपने कोई डिवीजन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया आपके पेज में, तो मिडल में कुछ टैग्स भी डालनी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? तो ये जो पूरा प्लानिंग होता है उससे बेटर ऑप्शन यही होता है कि आपको इजी से कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट? तो ये पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू था, मैंने बेसिक आपको बताया है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस है आपका, तो वो सिलेबस में क्या है। हेलो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हेलो, नो सर। ओके, हेलो सर। यस Sir, your voice is breaking up in between because your video projection and your screen is both project, so they are Okay. consuming lot of internet. okay, That's I will why, we switch are off my facing camera. some audio issues in between. Okay, I just switch off my camera. Okay, हेलो सर। okay, हेलो। hello, yes, यस आप सर, आपने जो कॉमन फेज में जो 4 फेज दिखाए है उसमें आई थिंक 5 मैंने डिप्लोमा में पढ़ा है। हाँ वो मेंटेनेंस है। I have just explained the basic 4 common phase. Okay. There are also before the analysis also one phase like requirement gathering, right? यस, या। So that is why. So now just I will explain this little bit your syllabus and what exactly cover in this syllabus in your subject. So first of all, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या है कि बेसिक रोल है उसमें कि उसकी जो मैथ्स है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है, और जो सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं तो उसका लेयर टेक्नोलॉजी कौन सा है, और जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस मॉडल है, आई थिंक 4 या 5 मॉडल्स है। तो आपको मैं 1 बाय 1 उनको समझाऊंगा कि कैसे यूज होता है, राइट? देन अलग अलग ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, द रेड मॉडल, इवोल्यूशनरी, एजाइल प्रोसेस मॉडल। आई थिंक एजाइल प्रोसेस मॉडल एंड SDLC model both are different, right? The linear sequential model, prototype model, RAID model and evolutionary process model are covers in the SDLC model. SDLC means software development life cycle, right? And agile development is a different thing. It's a exactly opposite of the SDLC. क्योंकि अभी आप देख रहे होगे कंपनी में है तो आपने कहीं रिक्वायरमेंट पढ़ी हो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की या कोई टेस्टर की, एनीवे सो दे आर रिटन दैट यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज इन अजाइल मेथोडोलॉजी। कहीं पे ऐसा नहीं देखा होगा कि एसडीएलसी मेथोडोलॉजी, राइट? तो एसडीएलसी मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि जो मैंने बेसिक स्टेप बताए 4 है कि सपोज एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो ये 4 स्टेप है कि 1 फेज कंप्लीट नहीं होता है तब तक यू कैन नॉट एंटर इन द सेकंड फेज। This is the rules of SDLC, software development life cycle. But in opposite, agile process model, you can do anything on the parallel. Means आप एक बंदा एनालिसिस कर रहा है, सेम टाइम कोई डिजाइन भी कर सकता है, सेम टाइम कोई डेवलपमेंट भी कर सकता है एंड सेम टाइम वो टेस्टिंग भी कर सकता है। तो उससे बहुत सारा एडवांटेज है ओवर दी SDLC कि आप जो भी कॉस्ट है आपकी और जो टाइमलाइन है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दी एजाइल डेवलपमेंट। तो उसके सारे थोड़े मॉडल है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कि आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कि उसकी कोई आपको प्लानिंग करनी है कि उसका
कॉस्टिंग कितना होगा, उसका शेड्यूलिंग क्या है, कि सपोज आप यूज कर रहे हो 4 फेज है हमारे, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड मेंटेनेंस, कि सपोज मुझे 4 वीक में कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करोगे? हाँ, 4 फेज है, मुझे कंप्लीट करने हैं ये प्रोजेक्ट, यू हैव अ टाइम 2 वीक्स, तो आप उसको डिवाइड कैसे करोगे 4 फेज को? आदित्य, हेलो, सर टीम वर्क से। टीम वर्क आई नो, बट जो मैंने 4 फेज बताया उसमें कैसे डिवाइड करोगे एक प्रोजेक्ट को? उसमें टाइम शेड्यूलिंग कैसे करोगे? जानकी? सर हम 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं पहले 3 फेज, और लास्ट जो टेस्टिंग है वो एक वीक के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यू हैव टू गिव अ क्लियर कट टाइमलाइन। कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि 3 days फॉर द एनालिसिस, 4 days फॉर द डिजाइनिंग एंड 5 days फॉर द कोडिंग एंड लास्ट 1 week फॉर टेस्टिंग, ऐसे है, राइट? तो उसको कैसे डिवाइड करोगे? सपोज आपको बोला है कि आपको जो हमारे डीजीएमआईटी वेबसाइट है सेम टू सेम दूसरी बनानी है, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? यू हैव अ 1 month टाइम, you cannot give a equally time to each phase, क्योंकि उसका रीजन क्या है? हाँ, जानकी? तो जो उसका वेबसाइट है उसका पूरा का पूरा हमें नॉलेज है, यानी कहाँ से कहाँ फ्लो जाता है, पूरा कंटेंट है, पूरा एनालिसिस किया होता है, फिर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाद जो कुछ प्रॉब्लम करेंगे। I think you have learned that the timeline chart, okay, in your diploma. Yes, sir. कि ऊपर हम वीक्स लिखते थे, राइट? वीक 1, वीक 2, वीक 3, एंड लेफ्ट हैंड साइड हम फेज लिखते थे। हाँ, तो वहां पे हम डिफाइन करते थे कि ये शेड्यूलिंग है, डिजाइन फेज इस वीक में रहेगा, कि उसका कुछ एनालिसिस और उसके बाद डिजाइनिंग रहेगा। कुछ भी करेक्शन आता है तो 2 दिन हम वापस एनालिसिस लेंगे, देन डिजाइन फाइनलाइज करेंगे, देन वी मूव टू दी कोडिंग पार्ट, देन फाइनली टेस्टिंग, राइट? जितना हमें वो पूरा कंटेंट के बारे में पता होगा उतना हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं पूरा। हाँ, बस, ओके। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हो गए कि ये वेबिनार चल रहा है, तो वो कई बार ऐसा भी होता है म्यूट करके चले जाते हैं। आई नो ईच एंड एवरी सिचुएशन while watching the any webinar or attend the lecture, so please keep live, because I will ask to anybody and you have to give answer, and also I am mark the attendance as well, so please keep live, okay? Then है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, जो है SRS। SRS मीन्स क्या? SRS सर उसमें हमारा पूरा वेबसाइट का एनालिसिस, फिर उसके सारे मॉडल और DFD मॉडल कैसे वर्क करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा फ्लो, सारा का okay. सारा। SRS will cover the only 2 phase, analysis and design, right? Yeah. Okay. Then after you will develop your website, you have to just insert some screenshot of your software or the website, and finally how you will perform the test on the particular developed website as well as the software. So you can easily identify some bugs or error from the developed software or the website. So you can deliver the error-free project to the client. तो वो है SRS। तो वहां पे स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है कि जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिकली हमें कितना अराउंड 2 बिलियन US spend every year for the testing purpose, right? तो उनको क्या है कि जो फ्रीलांस सॉफ्टवेयर है
अपने आपके फ्रेंड हो तो भी आप पूछ सकते हो कि मैक्सिमम टाइम दे कैन नॉट कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि ये से छोटी छोटी मिस्टेक होती है कि जब भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट आप लेते हो तो वहां पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपका जो भी काम होता है वो वेस्ट होता है। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एनी प्रोजेक्ट और एनी डेवलपिंग वेबसाइट यू हैव टू मेक दी SRS। सो उससे क्या होगा कि सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने होगी और जो भी कंस्ट्रेंट है कि आप ये यूजर ऐसा है कि उसको गुजराती लैंग्वेज में पता चलती है, हिंदी में पता चलती है, तो ये बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आपको पता है। सो यू कैन इजीली इंटरेक्ट और द डीलिंग विद द डिफरेंट क्लाइंट ऑन द सेम टाइम, राइट। देन जो मैंने बताया आपको डिजाइनिंग प्रिंसिपल है कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जो हमारे जो डिफरेंट डायग्राम है वो है। देन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड टेस्टिंग, तो जो कोडिंग स्टैंडर्ड या कोडिंग गाइडलाइंस है तो वो है। तो बेसिकली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि सपोज आपको बोला है कि एक कोड करो, तो वो कोड कैसे करोगे आप। जस्ट आई विल ओपन माय नोटबुक। Everyone visible my notepad? नो सर। No, sir. Okay, just wait. ढूंढने के लिए उसको एनालिसिस करेंगे। नो सर। One second, one second. Sir, we can इंग्लिश ना आवडतो गुजराती में कही शकत तू करण सर. Hello. yes, sir, I am suggesting that Now it is okay. I have to just write the simple hello world program. Now you can tell me what I have write first. LOL program means Hello. yes sir, what is LOL program? I don't understand, sir. LOL, no, I am just talking about the guidelines of the coding, basic guidelines, how to write the program. I have to write the one program in C, print hello world, right? So first of all, I will write the simple method include studio.h, right? Then has include conio.h, okay, then void main, okay, then Integer. print hello, printf, क्लास डिफाइन करने में ओके। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। अगर मैं ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को देता हूं तो उसको पता चलेगा? नो। नो, ओके, जस्ट वेट। यहां मैं कमेंट लिखता हूं यहां पे now Now understandable to everyone. right? Yes sir, it is understandable. तो उसमें क्या है कि जब भी हम कोडिंग लिखते हैं कि सपोज आप एक कंपनी में तो लाइफ टाइम जॉब करने वाले नहीं हो, राइट?
और आपने एक ग्रुप में प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप सपोज कि 3 लोगों को फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने पीएचपी में 100 लाइंस का कोड लिख दिया, अगर आप अवेलेबल नहीं हो और आपके पार्टनर है उनको कोई चेंज करना है कोई कोडिंग में पर्टिकुलरली, तो वो कैसे करेगा? Because you don't have any idea where anyone has written the insert function or the output function, right? So this type of the documentation will help you to understand the program. So this is the basic guidelines. Okay. Yes, sir. Sir, are you talking about the documentation part or the commenting part? Just guidelines of the coding standard and coding guidelines. कि आपको जब भी यूज करना है, जब भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि आप पूरा नोट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कोड लिखते हो कि सपोज आप एक कंपनी में हो, वहां पे आपने 5000 फाइल लिखी है कोडिंग की, लेकिन विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगी, तो जब भी कोई नया बंदा वो फाइल ओपन करेगा तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि कहां से आपकी लूप लॉजिक है, आप कहां से प्रिंट करवा रहे हो, सारी चीज वहां से उसको इजीली मिल जाएगी और वो इजी से कस्टमाइज भी कर सकता है। Right, sir. So that is the motive behind the coding standard and coding guidelines. Then है हमारा टेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो ये थोड़ा लेंथी है, मैं आपको जब उसका चैप्टर आएगा तब बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसमें कैसे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि यू हैव टू मेक सम टेस्ट केसेस इन एक्सेल शीट एंड यू हैव टू परफॉर्म ईच केस एंड यू हैव टू राइट द आउटपुट, राइट। एंड जो ये जो टूल है, विन रनर है, लोड रनर है और बहुत सारे अपाचे जेमीटर है, सेलेनियम वेब ड्राइवर है, तो मैं सेलेनियम वेब ड्राइवर एज वेल एज जेमीटर पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आपको पता चल जाए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग या मैन्युअल टेस्टिंग एज वेल एज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। देन द चैप्टर है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं तो वो कैसे होती है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें, और उसमें ISO 9000 और CMM, सिक्स सिग्मा, तो ये सारी चीजें क्या है वो है। देन लास्ट है री इंजीनियरिंग, राइट, और जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट जो बोल रहा था ना कि 5वां स्टेप है हमारा मेंटेनेंस, हाँ वो है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हो कि सपोज मैं पुराने पीसी थे जो हमारे कौन से थे सेवन प्रोसेसर, तो उसमें अभी मैं विंडोज 7 लगाऊंगा, मैं इंस्टॉल करूंगा तो हो सकता है, हाँ हेलो, The processing speed will be quite low for तो मींस yeah, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा हम, हाँ। तो ये यही है कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हो या कॉन्फ़िगर करते हो आपके प्रोजेक्ट को, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी सम बेसिक रिक्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एज वेल एज द वेबसाइट, राइट। देन ये जो पार्ट है आपका लास्ट में डेव ऑप्स है, वो बेसिकली लिया गया है अमेजॉन वेब सर्विस में से, तो वो आपको मैं थोड़ा सिखाऊंगा कि वो यूज कैसे होता है, क्योंकि नाउ यू नो that whole world moving to the cloud from the independent server, right? So I think it would be helpful to you to understand how the AWS work and what is the exact role of a developer operation in the AWS. And last है advanced topic in software engineering, जो क्लाइंट सर्वर कैसे यूज होता है, वेब इंजीनियरिंग क्या है, फिर उसको री इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। तो ये जो सारी चीजें है वो मैं आपके साथ 1 by 1 चैप्टर में शेयर करूंगा विद द पीपीटी। एंड डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपको कुछ काम है और आप एब्सेंट रहते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप हर एक लेक्चर में एब्सेंट रहना, और जो मैं क्लासरूम की लिंक शेयर करूंगा वहां पे वीडियो होगा पूरे लेक्चर का, अगर आप इनकेस एब्सेंट रहते हो तो आप वहां से भी देख सकते हो, राइट। जो लेट ज्वाइन हुए उनको मैं लिंक भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, ओके। right, तो ये था हमारा आज का सेशन, और मैं यहां से एक लिंक शेयर करता हूं आपको चैट बॉक्स में, तो यू कैन फील योर अटेंडेंस।
And one more thing, I think you some have a some problem to select the subject, Python or the cyber security. So now unmute your mic and let me know what is your problem and what like you want to learn. हेलो Yes. हेलो सर, एक्चुअली हमें साइबर सिक्योरिटी लेना था, तो हमने हाँ हाँ सर से, राहुल सर से बात की थी। तो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में ओनली 6 स्टूडेंट हो रहे थे, तो सर ने बोला था कि एटलीस्ट 12% स्टूडेंट होने चाहिए। तो 12% स्टूडेंट नहीं हो रहे, तो सर ने बोला कि हमें पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है, राइट, तो उसमें क्या है, बेसिक में आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम आती है, राइट, कि काली ओएस पे करना है और उसमें थियरी एग्जाम नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट कि आप पाइथन पढ़ोगे तो उसमें डेटा साइंस एज वेल एज दी पाइथन दोनों सीखने को मिलेगा, और वो इंपॉर्टेंट है जब भी आप साइबर सिक्योरिटी सीखोगे, राइट। ओके सर एक्चुअली वॉइस इशू हो रहा है आपका वहां से। हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल? Sir, it is clearly audible. नो सर। हेलो। यस यस सर, नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो आप इजी से आपके घर पे भी सीख सकते हो। देयर आर मैनी वीडियोस एज वेल एज द फ्री कोर्स आर अवेलेबल। सो इफ यू विल लर्न द पाइथन विद द डेटा साइंस, तो आपको दो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको वो करना है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी आपने ऊपर से देखा है कि जब आप अंदर जाओगे तो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो सारी पाइथन में ही लिखते हैं। अगर आपको पाइथन ही पता नहीं होगा तो क्या करोगे? तो दैट मीन्स हमें पाइथन पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आप पाइथन पढ़ो तो आपको बेनिफिट ही है। ओके सर। Now you agree? I am not forcefully tell you. नो सर, इट्स ओके। Anybody have any doubt? No, sir. Okay. Okay, question આજના લેક્ચર નો? नो सर। ओके, सो जो बच्चे आपके क्लास में एब्सेंट रहे हैं टुडे, आई थिंक देयर आर 38 वर प्रेजेंट, तो उनको बोल दीजिएगा जो बाकी है वो प्रेजेंट हो जाए कल से, और जो भी अटेंडेंस है आज मैंने सीट में लिखी है कल से नहीं लिखने वाला, राइट? ओके सर। लिंक शेयर नहीं करूंगा, तो उनको बोलना कि प्रेजेंट हो जाए बिफोर 2 मिनट्स। आई एम नॉट आस्किंग यू बिफोर 5 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स और ऑन टाइम। From next video, I will start my lecture from chapter 1. So I think you will miss any lecture. So you will lose many things. Okay. You all have filled the attendance or not? Yes, sir. कर दी सर। One second. वो लिंक वापस सेंड करें। Why? सर मैं लेफ्ट हो गया था, एक कॉल करना पड़ा इसलिए सर। तो था ही नहीं, अभी आया क्या? नहीं सर, कब से हूँ? लास्ट में मैं अटेंडेंस नहीं लेगा। ओके, नो प्रॉब्लम सर। शहर तो ये है तो सही, आ गई देख। नहीं है? हेलो? नहीं है सर। नहीं। हाँ, देता हूँ। ओके ओके सर। हेलो? Yes, sir. Now just fill your attendance, just let me know, so I will close my
meeting, and from next lecture, just save this today's meeting link. So I will just change the timing only. Okay, sir. Okay. हेलो सर. Yes. सर ये सब्जेक्ट का कोई पीडीएफ है, मतलब चैप्टर वाइज कोई पढ़ने का? Everything will available from next video or next lecture. Don't worry about that. Okay. Okay, sir. I think if you have filled the attendance, you can leave this Google, so I can understand how many is remaining.